Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2 subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Dear learners, today we are going to discuss about the treatment of diabetes 2 type 2 diabetes, that is NIDDM, and the agents which are commonly used for the pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus is known as oral hypoglycemic or anti-diabetic agents. So, let us start with the learning objectives of today's lecture. So, at the end of this session, you people will be able to understand the etiology and pathophysiology of type 2 diabetes mellitus. You people will be able to explore the drugs which are very commonly used to treat type 2 diabetes mellitus, and at last you people will also able to analyze the pharmacology of each class of oral hypoglycemic or anti-diabetic agents. Now, let us start with the type 2 diabetes mellitus. So, in previous lecture we covered the insulin and type 2 diabetes type 1 diabetes mellitus, that is also known as IDDM. So, here in this lecture we are exploring the concepts of type 2 diabetes mellitus, what are the symptoms, what are the pathophysiologies, as well as what are the treatment protocols which are required to control the hyperglycemia in type 2 diabetes mellitus. So, it is also known as non-insulin dependent diabetes mellitus. We have covered this in the previous lecture. As I also mentioned that type 2 diabetes mellitus having the occurrence of 90 to 95% compared to the type 1, which is around 5 to 10%. Okay. So, type 1 diabetes mellitus is very common, very less seen compared to the, because it is a juvenile type of diabetes mellitus. Now, it is seen in the people who have the age above 40 years or either the people who have overweight. Okay. So, the reason behind this type 2 diabetes mellitus is that the cell or the target cell, you better to say insulin receptor cell, is becoming the resistant or the less sensitive to the insulin. So, here insulin secretion is there, okay. In less quantity insulin secretion is there, but the sensitivity of the cell, the target cell is decreased. So, genetic predisposition is also seen in diabetes mellitus, that is type 2 diabetes mellitus, and you can say 95% of identical twins have the potential to develop the type 2 diabetes mellitus. Now, here no antibodies were seen as the in type 1 diabetes mellitus. There is type 1A is basically characterized by the development of antibodies which destruct the pancreatic cells. Here the ketoacidosis is very less, chances are there along with the type 2 diabetes mellitus, whereas it is maximum seen in the type 1 diabetes patients. Now, here due to the you can say less sensitivity of the insulin towards the target cell. So, there is a chance that patient generally develops the hyperosmolar coma. Okay? Now, what is hyperosmolar coma? It is nothing, it is the excessive hyperglycemia, or you can say chronic hyperglycemia along with the dehydration. Okay? So, if someone is asking what is a hyperosmolar coma, it is a life threatening condition and it is characterized by the hyperglycemia along with the dehydration. Now, hyperosmolar coma is generally treated because it is already I mentioned that is a life threatening condition. So, it requires a clinical emergency condition and it requires generally clinician use the insulin preparation to save the life of patient. So, here generally metabolic derangements are seen in type 2 diabetes mellitus, that means वेस्कुलेचर में कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इन प्रीवियस लेक्चर वी कवर्ड दैट द थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद द वेस्कुलर मैट्रिक्स एंड नैरोइंग ऑफ द ल्यूमन विल कॉज द व्हाट एथेरोस्क्लेरोसिस और may lead to the retinopathy, nephropathy or the neuropathy, and these are the
you can say complications or the comorbidities which are commonly associated with the chronic diabetes mellitus, that is type 2 diabetes mellitus. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर माइक्रोवैस्कुलर चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, ठीक है. बट समटाइम्स अगर हम बड़े जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी बात करें और उनका अगर मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस हो रहा है तो दैट में लीड टू द जनरेशन ऑफ व्हाट, एथेरोस्क्लेरोसिस और डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया. दिस इज द रीजन व्हाई द डायबिटिक पेशेंट्स आर जनरली prone to the atherosclerosis और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है ना. तो उनको डिस्लिपिडीमिया होने की वजह से यानी कि उनके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, एंड दिस विल लीड टू द you can say atherosclerosis or other dyslipidemic conditions. Now retinopathy and nephropathy basically results due to the accumulation of sorbitol, ठीक है ना. sorbitol जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमा होने लगता है और जमा होने की वजह से उसकी थिकनिंग कर देता है. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर थिक हो गया तो इसकी वजह से जो वैस्कुलेचर है वहाँ का वो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल्स का जो सप्लाई है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है. ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाएगी एंड दैट विल लीड टू द रेटिनोपैथी और द नेप्रोपैथी. कैटरैक्ट इज ऑल्सो सीन इन एज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है. ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है. कैटरैक्ट जो है वो जनरली इसको हम हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है. इसका ऑपरेशन करना पड़ता है. Now let's move to the pathophysiology. So generally diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, if I am saying diabetes mellitus, so it means I am talking about type 2 diabetes mellitus. Okay, so type 2 diabetes mellitus, because it has a predisposition of 95%, na, that's why. So generally it occurs due to two things. One is genetic predisposition and second one is lifestyle बैलेंस, ठीक है. आपका लाइफस्टाइल अगर बहुत अच्छा नहीं है, इफ़ यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग द जंक फूड एंड द ऑयली फूड, और यू आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्सरसाइजेज और योगा और एनीथिंग रिलेटेड विद द योर फिजिकल एक्सरसाइजेज, you are not stick with your regular you can say biological clock rhythm, ठीक है ना. तो this will lead to the what lifestyle imbalance, ठीक है, and this may lead to the overweight of your body or this will lead to finally diabetes type 2 mellitus. Genetic predisposition is also a reason behind that. अब इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है, तो एक पाथवे ये हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा. इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स द टारगेट सेल is less sensitive to the insulin. If insulin is secreting from the beta cells, it does not alter the or does not stimulate the you can say does not decrease the hyperglycemia in that particular cell or that particular periphery, ठीक है ना. दूसरा पाथवे ये हो सकता है कि जो बीटा सेल्स हैं वो थोड़ा सा कम काम करने लग जाए. यहाँ पर बीटा सेल्स भी कभी कभी यू कैन से कि माल फंक्शनिंग होने लग जाती है और उनकी वजह से दैट में लीड टू द decrease production of the insulin. Now generally the agents which are used to treat the hyperglycemia are known as anti-diabetic agent or oral hypoglycemics. Generally oral hypoglycemic word जो use किया गया because the theme of the treatment is never that we want to create or to maintain the hypoglycemia, we want to maintain the euglycemia, ठीक है ना. तो यहाँ पर थोड़ा सा ये पैराडॉक्सिक कंडीशन है, पैराडॉक्सिकल कंडीशन है जहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है. जनरली बुक्स में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेंशन रहता है बट इट इज़ बेटर टू मेंशन एंटी डायबिटिक एजेंट्स, ठीक है ना. ओके, नाउ तो मैं बोल रहा था आपसे कि यूग्लाइसीमिया जो है वो हमारा कंसेप्ट होता है कि हमको यूग्लाइसीमिया लाना. यू का मतलब हो गया नॉर्मल और ग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज. तो अगर आप ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल कंडीशन में ला दे रहे हो दैट इट मीन्स यू आर अप्रोच अटेनिंग योर टारगेट थेरेपी, ठीक है ना. नाउ they are very effective to treat the type 2 diabetes mellitus, especially the patients who are not responding to the lifestyle modification. जब भी हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपको मेडिसिन पे ला देता है, ठीक है ना. फर्स्टली डॉक्टर कैन स्टडी योर मेडिकेशन योर डिजीज हिस्ट्री, ठीक है. आपकी डिजीज हिस्ट्री पढ़ेगा, वो देखेगा एग्जैक्टली व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज और उनके साथ एसोसिएटेड जो नॉन मेडिकेशन या नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस हो सकते हैं वो सबसे पहले उनको अप्रोच करता है, ठीक है ना. अगर कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 250-300 है, तो उन कंडीशंस में ट्रीटमेंट इनिशियल लेवल पे हमको स्टार्ट करना होता है. बट अगर नॉर्मल आप प्री डायबिटिक हैं
या आपके अंदर डायबिटिक कंडीशंस थोड़े थोड़े दिखने लग रहे हैं, ठीक है, तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस में हम नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ जाते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं। अगर आप उन नॉन मेडिकल इंटरवेंशंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्डिंग नहीं हो रही है, देन वी कैन मूव टू द एंटी डायबिटिक एजेंट्स। नाउ let's move to the classification of anti-diabetic agents. So here we can classify these into the different categories. So let's start with the oral hypoglycemic. Now sulfonylurea is generally called as oral hypoglycemic agent, ठीक है ना। तो oral hypoglycemic word is you can say restricted with the sulfonylurea, ठीक है। It is again divided into two generations, first generation and the second generation. First generation is now obsolete, they are not very commonly used. The drugs are tolbutamide and the chlorpropamide. Second generation में clibaclamide and the glipimiride is the examples. Bagonoids, they are very commonly used drugs. The very famous drug is the metformin, and metformin is also an obsolete molecule. Now meglitinide analogs is the class which consists of two molecules, that is the repaglinide and the netiglinide. थायोएजिलिडायोनोडोन्स जो हैं उनका एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पियोग्लिटाजोन एंड रेजोग्लिटाजोन इज द एग्जांपल ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, दिस क्लास. नाउ समटाइम्स we need to inhibit the glucosidase enzyme, ठीक है. So for that we have the alpha glucosidase inhibitor and the molecules, the drugs are acarbose, miglitol and the voglibose. Now these are drugs are very commonly used in the pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus. Now incretin mimetic drugs are also available which can mimic the role of incretin, that is also known as GLP, ठीक है. We can elaborate that in the later part of this slide. Exenatide is the example of that class. DP4 inhibitor is very required to increase the level of incretin, because DPP4 what it can do, it can metabolize the GLP, ठीक है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड. और ग्लूकागॉन पेप्टाइड को अगर ये डिग्रेड करेगा तो उसको इनहिबिट करना जरूरी है. एंड द मॉलिक्यूल्स आर सिटाग्लिप्टिन एंड विल्टाग्लिप्टिन. नाउ दीज आर द न्यूअर ड्रग्स एंड हैव अ वेरी पोटेंशियल, यू कैन से. नाउ amylin mimetics, these are the drugs which can mimic the activity of amylin. Amylin is a neuroendocrine peptide and it inhibits the glucagon synthesis, ठीक है. इसमें जो ड्रग है that is the pramlintide. Sodium glucose co-transporter, that is also known as SGLT2 inhibitors. ये जनरली ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर को रेगुलेट करने वाले मॉलिक्यूल्स है. These are also newer class of drugs. Example are dapagliflozin and sergliflozin, ठीक है ना. तो ये क्लासिफिकेशन है जो वेरी जिसके बारे में हम बहुत कॉमनली बात करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट यू कैन से कॉमनली यूज्ड मॉलिक्यूल इन द टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है. दैट इज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एंड सल्फोनाइल्यूरिया आर द एग्जांपल्स. नाउ दे आर डिवाइडेड इनटू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, बट नाउ chlorpropamide and tolbutamide is obsolete in the market. Tolbutamide having a very short duration of action, that's why it is obsolete, and having a hypoglycemic side effects, that's why. And chlorpropamide is also having a you can say hypoglycemic side effects, but it has a duration of action very good. So बाद में हमने chlorpropamide को भी डिसकंटिन्यू कर दिया मार्केट से, बट इनका जो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक इशू है इन ड्रग्स के साथ, दैट इज व्हाट फर्स्ट जनरेशन के साथ, दैट दे इंड्यूस द सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया. अब अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो है दे आर लॉन्ग एक्टिंग पोटेंट, ठीक है, एंड हैव द लेस हाइपोग्लाइसेमिक साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना. सल्फोनाइल्यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो जनरली दे बाइंड विद द रिसेप्टर नोन एज सल्फोनाइल्यूरिया रिसेप्टर्स, एंड दिस बाइंडिंग विल लीड टू द डिक्रीज कंडक्शन ऑफ द पोटेशियम. नाउ लेट्स बैक टू दैट थिंग, ठीक है. इफ द पोटेशियम कंडक्शन इज डिक्रीज्ड, यानी कि एटीपी ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो एटीपी ज़्यादा हुआ तो पोटेशियम कम हुआ, तो पोटेशियम कम हुआ तो दिस विल लीड टू द डिपोलराइजेशन, एंड दिस डिपोलराइजेशन विल लीड टू द इन्फ्लक्स ऑफ व्हाट, कैल्शियम, इंक्रीज इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम. और फिर आप दोबारा से लास्ट स्लाइड में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, increased calcium will lead to the exocytosis of the insulin vesicles, and this will lead to the release of the insulin, and this will, so these agents are basically also known as the insulin secretagogues, ठीक है ना, because they have the potential to increase the secretion of what, insulin, ठीक है. यानी कि जहाँ बीटा सेल का डिसफंक्शनिंग हुआ था,
these molecules are very effective to cope up with that condition. ठीक है ना. Now what is the pharmacokinetics? They are very well absorbed orally, having the 90% of plasma protein binding. That means कि बहुत देर तक बॉडी में आपके रह सकते हैं. They have the potential to cross the BBB. Now they metabolized and form the active metabolite, and these active metabolite or either inactive metabolite will leave the body by the urine. ठीक है ना. ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात कर लें तो टॉलब्यूटामाइड हैविंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर्स, बल्कि हम अगर क्लोरप्रोपामाइड की कहेंगे तो वो अराउंड आप कह सकते हो 24 आवर्स तक था. ठीक है ना. इंटरमीडिएट एक्टिंग में अगर हम बात करें ग्लिपिजाइड और ग्लिबेनक्लामाइड आ गया, दैट हैविंग द 24 आवर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वेयर एज लॉन्ग एक्टिंग ग्लिमिपेराइड एंड ग्लिकाजाइड इज द हैविंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अराउंड 24 आवर्स. नाउ अब इन ड्रग्स के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया ये कॉज कर रहे थे, साथ में ये दीज ड्रग्स हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग इंटरेक्शन विद द अदर ड्रग्स. ठीक है, उसको देख लेते हैं. तो जनरली वो ड्रग्स जो सल्फोनाइल यूरिया के एक्शन को बढ़ा देंगे. ठीक है, तो उनका एग्जांपल देख लो अगर, तो फिनाइल ब्यूटाजोन, सल्फिन पैराजोन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग को डिस्प्लेस कर देते हैं. मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन को ये क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, यानी सल्फोनाइल यूरिया को जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है वो कम हो गया, तो इसका मतलब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी वैसे ही. ठीक है, यहाँ पर सिमेटिडीन, कैटेकोनाजोल, सल्फोनामाइड्स एंड वारफेरिन, क्लोरमफेनिकॉल आर द एग्जांपल्स. समटाइम्स दे हैव आल्सो पोटेंशियल, some drugs have the potential to increase the pharmacodynamic property of the sulfonylurea. For example, salicylates, propranolol, we have sympatholytic antihypertensive like theophylline, alcohol, they can increase the pharmacodynamic property of what? Sulfonylurea. So if we can talk about the drugs which decreases the action of sulfonylureas, तो generally ड्रग के मेटाबॉलिज्म को आप इंक्रीज कर दो, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो जल्दी एक्सक्रीट आउट होगा. एग्जांपल फिनोबार्बिटॉन, फेनेटोइन, रिफेम्पिसिन. क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज आल्सो अ कंडीशन विच डिक्रीजेज द इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म. अपोजिट एक्शन और सप्रेसेस द इंसुलिन रिलीज. यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, थायाजाइड्स आ जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फ्यूरोसेमाइड्स आ जाते हैं जो कि एसयू के एक्शन को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं बाय इनहिबिटिंग द इंसुलिन रिलीज. नाउ जनरली सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैव द लेस सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन. Hypoglycemia is the most common side effect associated with the sulfonylureas. They can lead to, the first generation can lead to the coma if uncontrolled. Weight gain, edema, fetal hypoglycemia is also seen if the pregnant woman is treating with the sulfonylurea. That is why it is contraindicated in the pregnancy. Now generally sulfonylurea के साथ डाइसल्फिराम like effect बहुत देखने को मिलता है. What is डाइसल्फिराम? It is a drug which is used to treat the alcoholism. ठीक है ना, अल्कोहलिज्म को ये ट्रीट करने के लिए होता है और ये करता क्या है, बेसिकली ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है. ठीक है ना, तो इसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर मतलब अल्कोहल को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है. मतलब जब भी अल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसको वोमिटिंग हो जाएगा, हेडेक होने लगेगा, रैसेज आने लगेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम ड्रग छोड़ देता है. बट सल्फोनाइलुरिया ऑल्सो पोजेसेस दिस टाइप ऑफ व्हाट एक्सेंट्स. ठीक है ना. Photosensitivity is very rare with the, or cholestatic jaundice is also very rare to the sulfonylureas. Now moving toward the meglitinide derivatives. Now these drugs are what you can say anti-diabetic agents ना. तो repaglinide है, repaglinide is what? It is the drug which block the potassium ATP channel. ठीक है, and इसके ब्लॉक करने की वजह से सेम इंसुलिन का रिलीज जो है वो बढ़ेगा, वही सेम फंडा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉक हुआ है तो इसकी वजह से. ठीक है. नाउ these drugs are generally bind with the what meglitinide receptor. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सल्फोनाइलुरिया रिसेप्टर से भी ये बाइंड करते हैं. बाइंड करने के बाद पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करेंगे, उसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगा और इंसुलिन का रिलीज बढ़ जाएगा कैल्शियम के एक्सेसिव इन्फ्लक्स में. ठीक है, जनरली एडमिनिस्टर्ड बिफोर द मील, शॉर्टली बिफोर द मील to reduce the postprandial glucose. Generally this word लोगों को confusion रहता है, what is the postprandial. तो post का मतलब हो गया बाद में, prandial का मतलब मील,
खाना खाने के बाद का जो टर्मिनोलॉजी दैट इज व्हाट पोस्ट पैराइटल, यानी जब हम ग्लूकोज मेजर करते हैं खाना खाने के बाद देन इट इज नोन एज व्हाट पोस्ट पैराइटल, ठीक है ना ग्लूकोज। नाउ यहाँ पर इस ड्रग के साथ एडवांटेज क्या है कि वेट गेन जो है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है, कम एलर्जिक है, हाइपोग्लाइसीमिया भी बहुत कम देखने को मिलता है, स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने मील को स्किप किया हुआ है, ठीक है ना। मेटफॉर्मिन के साथ जनरली कंबाइन करके दिया जाता है और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज अराउंड 5 आवर्स and dose is generally which is used through the oral route is 0.25 to 4 milligram orally before meal. Now bigonides, these are the drugs you can say having a very good market, ठीक है ना। तो metformin is the molecule. Now these are the drugs which you can say known as anti diabetic और euglycemic agents, ठीक है ना। ये स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ही चलने वाला ड्रग है। ये क्या काम करता है, ये AMPK को स्टिमुलेट करता है। Now what is AMPK? तो it is adenosine monophosphate dependent protein kinase. अब what it can do? It can mediate the action of metformin. अब कैसे करता है ये हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस है उसको इनिबिट कर देगा। तो जैसे ही हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट किया, लीवर में जो ग्लूकोज बन रहा है बाय प्रोटीन और बाय फैट, ठीक है ना, दैट इज नोन अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको इनिबिट कर दिया। ग्लूकोज के आउटपुट को ये क्या कर देगा, लीवर में से सप्रेस कर देगा। इसके साथ साथ मसल्स के अंदर, स्पेशली स्केलेटल मसल्स के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देगा, इंसुलिन बाइंडिंग प्रोमोट कर देगा रिसेप्टर के साथ। ये हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल कॉज नहीं करता है, ये कभी भी पैंक्रियाटिक बीटा सेल के फंक्शन को नहीं डिफरेंट वो करता है, और साथ साथ में जो एथेरोस्क्लेरोसिस या माइक्रोवेस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे उनको भी ये कंट्रोल करता है बाय इंक्रीजिंग द गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज HDL एंड डिक्रीजिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज LDL एंड द VLDL. half life is around 2 to 3 hours and generally metabolized in okay sorry इट इज़ नॉट मेटाबोलाइज, ठीक है ना। ये मेटाबोलाइज नहीं होता, ये डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू, ठीक है ना, मतलब यूरिन के रास्ते बाहर हो जाता है। Now moving towards the next molecule that is next class that is the thiazolidinones, ठीक है। molecule is pioglitazone. Now what they can do, generally glitazones जो हैं इसमें चाहे रोजिग्लिटाजोन है या पियोग्लिटाजोन हो, they are the agonist of PPAR gamma, ठीक है। व्हाट इज PPAR gamma? इट इज peroxisome proliferator activated receptor gamma, ठीक है ना। अब व्हाट इट कैन डू, जनरली जब पियोग्लिटाजोन उससे बाइंड करता है तो बाइंड करने की वजह से ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन IRG के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जैसे ही इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन का ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है या लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल हो जाएगा और इंसुलिन का जो सिक्रीशन या सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब it also increases the number of GLUT4 transporter. GLUT4 transporter is a transporter which is required to move glucose from one place to another place, that is to peripheral movement के लिए ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। Now ये helpful होता है uptake के लिए, ठीक है। It decreases the hepatic glucose output by inhibiting the gluconeogenesis as well as it is effective in the type 2 diabetes mellitus and requires high dose of insulin, ठीक है ना। जनरली जो डोज हम यहाँ यूज़ करते हैं दैट इज़ अराउंड 11 to 45 मिलीग्राम OD दिन में एक बार, और एक्शन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इट इज़ मोर देन 24 आवर्स। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन यूज़ इट फॉर द ओनली वंस अ डे, ठीक है ना। इसको मेटफॉर्मिन के साथ कंबाइन करके चलते हैं जनरली जो है, ठीक है। और इसका जो रोल है इंसुलिन सेंसिटाइजेशन वाला उसको डेवलप होने में इट विल टेक अराउंड 1 to 2 वीक्स, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमको थोड़ा लंबे टाइम तक चलाना होता है। ए कार्बोज या बॉग्लीबोज दैट बिलोंग्स टू द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्लास। नाउ अल्फा ग्लूकोसाइडेज का काम क्या था, वो डाइजेस्ट करता था कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स को या स्टार्च को और बनाता था मोनोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो अब ये ड्रग क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देंगे किसको, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर को, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को, ठीक है। तो जैसे ही इन्होंने इनहिबिट किया उसको, ये क्या होगा, पोस्ट पैराइटल जो डाइजेशन था ग्लूकोज का वो कम हो जाएगा, ठीक है। साथ में HB1AC जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, बॉडी वेट कंट्रोल कर लेगा, सीरम ट्राइग्लिसराइड यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा। डोजेस जो हैं दैट इज अराउंड 50 to 100 मिलीग्राम दिन में 3 बार, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है थोड़ा कम है, ठीक है। इंटेस्टाइन में मेटाबोलाइज होता है और मैक्रोबियल फ्लोरा के थ्रू और फीकस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। जनरली HB1AC एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, व्हाट इज HB1AC? तो HB1AC इज नथिंग, इट इज नोन एज व्हाट, ग्लाइकोलेटेड हीमोग्लोबिन,
यानी जब हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ बाइंड कर जाए देन इट इज नोन एज व्हाट, ग्लाइकेलेटेड हीमोग्लोबिन. जनरली डॉक्टर कैन access you can say access this particular test for checking the ग्लाइकेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. ठीक है ना, अगर हीमोग्लोबिन का ग्लाइकेशन हो रखा है तो दैट में लीड टू द सीवियर माइक्रोवेस्कुलर यू कैन से और माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलेचर कोमॉर्बिडिटी. ठीक है ना, तो उन चीज़ों को ये नोटिस करने के लिए करते हैं. जनरली 6% तक जो है वो हम उसको मान लेते हैं कि इट इज़ कंट्रोलेबल. ठीक है ना, अगर 6% तक HbA1c है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर है तो हाँ. बट वंस इट मूव आफ्टर 6%, ठीक है ना, तो भैया ये प्री डायबिटिक के कंडीशन है. और वंस इट क्रॉसेज द 7.5, ठीक है ना, तो यू कैन से यू आर सफरिंग फ्रॉम व्हाट, डायबिटीज मेलाइटिस. ठीक है ना, तो HbA1c इज ऑल्सो अ मार्कर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ chronic diabetes mellitus. ठीक है ना. नाउ incretin mimetics आर द ड्रग्स विच आर यू कैन, मैंने पहले बताया था इंक्रेटिन इज नथिंग, इट इज द ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड. ठीक है ना, अब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड या फिर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड है. इनका काम क्या होता है कि ये जो आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, उसके लेवल से इंसुलिन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करते हैं. ठीक है ना, यानी कि आपने खाना खाया और ग्लूकोज ने मैसेज भेजा अंदर through the excessive ATP by decreasing the potassium, and depolarization will lead to the calcium influx will lead to the exocytosis of insulin. ठीक है ना, तो ये उसको कंट्रोल करते हैं. अब इन ड्रग्स को जो मिमिक करें, इनके एक्शन को जो मिमिक करें इस क्लास को, उसको हम कह देते हैं इंक्रेटिन माइमेटिक. नाउ व्हाट आर द ड्रग्स? नाउ drug is exenatide. It is a long acting drug and generally obtained from the salivary secretion of Glia monster. ठीक है, Glia monster एक मतलब छिपकली टाइप का है, रेप्टिलिया है, उससे ये निकाला जाता है. इट इज़ अ वेरी पोटेंट ड्रग. ठीक है, बाइंड्स विद द GLP-1 रिसेप्टर. इनएक्टिव नहीं दिया, मतलब ये ओरली रूट से नहीं दिया जा सकता, ओरल रूट से ये इनएक्टिव होता है. ठीक है, सबक्यूटेनियस से देना होता है 5 to 10 मिलीग्राम BD. ठीक, और ये क्या करता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देता है बीटा सेल से, जो मैंने आपको बोला. ठीक है, इंक्रेटिन माइमेटिक का रोल यही है. ये ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को कम कर देगा, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा. और जनरली इसको यूज करते हैं हम मेटफॉर्मिन में, स्पेशली इन द रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, स्पेशली द पेशेंट हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग विद द अनदर ड्रग्स. DPP-4 इनिबिटर. अब ये इंक्रेटिन जो था ना, ये मेटाबोलाइज हो जाता है बाय द DPP-4. ठीक है, तो इसको ब्लॉक करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर इंक्रेटिन माइमेटिक का एक्शन नहीं आएगा तो DPP तोड़ देगा, तो ये कैसे काम करेगा. उसको इनिबिट करने के लिए जो ड्रग्स हैं दैट आर सिटाग्लिप्टिन एंड विल्टाग्लिप्टिन. नाउ दे आर ओरली एक्टिव एंड हैव द excessive GLP expression by inhibiting the DPP-4. What they can do, they can increase the insulin secretion, glucagon के लेवल को कम कर देते हैं. It also suppresses the appetite. This will lead to the low body weight. लॉन्गर हाफ लाइफ है. जनरली इसको हम मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरिया के साथ यूज़ करते हैं, और किसमें, टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि रेजिस्टेंट हो जाता है दूसरे ड्रग्स से. सिटाग्लिप्टिन जो है ये GLP के लेवल को मेंटेन करता है, बट जो पेशेंट कार्बो, आप कह सकते हो द पेशेंट विच में नॉट बी पॉसिबल इन पेशेंट विद द अच्छा जो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट पे हैं उनके लिए काम नहीं करता है. DPP-4 इज ऑल्सो मेटाबोलाइज्ड बाय पेप्टाइड लाइक प्रोटीन्स. ठीक है ना. साइड इफेक्ट्स में अगर बात करें तो जो नेजोफेरिंग्स है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंड इट इज़ ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सब्सटेंस P. ठीक है. नाउ प्रेवलिनेटाइड जो है एमेलाइन माइमेटिक है, और ये जनरली एक न्यूरोएंडोक्राइन पेप्टाइड है जो कि जनरली ग्लूकागॉन के सेक्रेशन को ब्लॉक कर देता है. गैस्ट्रिक एम्पटिंग को कम कर देगा, खाना ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहेगा, इसकी वजह से आपका एपेटाइट भी कम हो जाएगा. इट इज़ अ यू कैन से मॉडिफाइड एमेलाइन पेप्टाइड. ठीक है. जनरली जो डोज है वो इसका 50 to 60 माइक्रोग्राम सबक्यूटेनियस दिया जाता है बिफोर मील एज ए एडजंक्ट टू द इंसुलिन इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. ठीक है ना. 60 to 120 माइक्रोग्राम SC दिया जा सकता है बिफोर मील, स्पेशली इन द पेशेंट हु आर यू कैन से रिक्वायरिंग द इंसुलिन इन द टाइप 2, यानी क्रिटिकल जिनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया उनको हमको ये देना पड़ता है. फार्माकोलॉजी ऑफ SGLT1 इनिबिटर. दीज आर द न्यूअर मॉलिक्यूल्स, डापाग्लिफेजोन या कैनाग्लिफेजोन. ठीक है. ये जनरली क्या करते हैं, ये सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को रेगुलेट करते हैं. अब ग्लूकोज को मूव करने के लिए
एक ट्रांसपोर्टर सिस्टम चाहिए जिसको हमने ग्लूट बोला था, ये उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। तो जब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सिस्टम ही नहीं मिलेगा तो वो मूव नहीं करेगा, तो इसकी वजह से आपका हाइपरग्लाइसीमिया वाला जो रोल है वो कम हो जाएगा। जनरली किडनी जो है वो फिल्टर करता है ग्लूकोज थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब इन द पीसीटी बाय द SGLT2, ठीक है ना। अब जैसे ही यू इनहिबिट द SGLT2 इट डिक्रीजेज द ग्लूकोज रीअब्सॉर्प्शन and glucose reabsorption once decreases it will increase the excretion of excessive glucose from the urine, ठीक है ना। now it is very effective in diabetic kidney nephropathy excreted glucose from the blood. SGLT inhibitors may cause the weight loss. No hypoglycemia was seen in the patients. Polyuria glucosuria is the side effect which is associated with this drugs. Now newer oral drugs की अगर हम बात करें तो डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेन रेसिन्स में आ जाता है ग्लोबोसैलम, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड एज ए न्यूअर ओरल ड्रग फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. नाउ दिस इज द चार्ट विच इज यू कैन रिफर फॉर द फार्मिकोथेरेपी ऑफ दिस इज द मोनोथेरेपी. अगर आपका HbA1c बिलो 7.5 है तो आप मोनोथेरेपी में जा सकते हैं. मेटफॉर्मिन है, आपके पास GLP-1 है, SGLT2 है, DPP-4 इनहिबिटर्स हैं. हाँ, यहाँ पर थायोजोलाइड नहीं चला सकते और सल्फोनाइल यूरिया नहीं चला सकते. HbA1c अगर 7.5 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर आपको मेटफॉर्मिन के साथ ये मॉलिक्यूल्स लगाने पड़ेंगे. और अगर आपका HbA1c 9 से ऊपर चला गया तो आपको या तो डबल या तो ट्रिपल थेरेपी चलाना होगा. अगर उससे भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंसुलिन के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना होगा. दीज आर द रेफरेंसेस फॉर योर एक्सटेंडेड स्टडी. ठीक है. थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग. थैंक यू.